جی یہ ڈیڈی کنال پہلگام حلقے انتخاب کی ایک جگہ کاٹسو سے کوئی اوپر جا کے اس کو بٹپورہ کہتے ہیں، وہاں سے اس کا ہیڈ ورکس ہے، اوریجن ہے اس کا، اور یہ چلتے چلتے کوئی 35 کلومیٹر فائنلی ترال میں اینڈ اپ ہو جاتی، اس کا ٹیل اینڈ ترال پہ ہے، اور پورا علاقہ 3 کانسٹیچوئنسیز پہ مبنی ہزاروں ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوتا ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹی کلچر کی طرف سے اس ہارٹی کلچر میں اس بیلٹ نے کافی ترقی کی، کافی بہترین پرفارم کر رہا ہے۔ اس ہارٹی کلچر کا لائف لائن اگر آپ دیکھیں تو یہی ڈیڈی کنال ہے۔ دشنی پورہ روٹ بیلٹ آپ نے سنا ہوگا اس وقت کشمیر میں تیسرے نمبر پہ پرفارم کر رہا ہے، پہلے سوپور، دوسرا شوپیاں، اور تیسرا ہمارا یہ دشنی پورہ، اس کی لائف لائن ہے ڈیڈی کنال۔ لیکن میں نے حال ہی میں، جیسے آپ کو جانتے ہیں کہ رفیق صاحب ٹیل اینڈ پہ آتے ہیں اس کو، اور ان کے والد مرحوم نائک صاحب کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسپیکر رہے ہیں، ریونیو منسٹر رہے ہیں، پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم ویری صاحب وہ منسٹر رہے ہیں، اپنے علاقے کے نمائندے رہے ہیں، دونوں نے مل کے اس پہ کئی کام کیا۔ جب ہم ٹیل اینڈ کی طرف جاتے ہیں تو ٹیل اینڈ سے کوئی 6 کلومیٹر ہی اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں دونوں نے مل کے، نائک صاحب نے اپنے ایریا میں لفٹ اریگیشن بنوایا، میرے والد نے اپنے ایریا میں لفٹ اریگیشن بنایا، تو ان کے دور میں ہم لوگوں کو پانی ملتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 5-10 سالوں میں اس کنال کو کسی نے پوری طرح سے پوچھا نہیں، بلکہ ہنڈریڈز آف کروڑ کا روپیہ اس کے نام پہ لگایا، ہو گیا کہاں وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کہیں 2-3 الیکشنز بھی اسی نام پہ لڑے گئے، وہاں پہ کوئی 300 کروڑ کے آس پاس پیسہ اس پہ صرف کیا گیا۔ لیکن میں نے حال ہی میں تقریباً 31 کلومیٹر اس پہ واک کیا، اور جو نیکسٹ 4-5 کلومیٹر رات دیر ہو گئی تھی، کوئی 11 بجے میں پہنچا رات کو وہاں پہ اس کے ہیڈ ورکس پہ، پھر گاڑی کا استعمال کیا، 4-5 کلومیٹر گاڑی پہ چلا گیا، تو جگہ جگہ میں نے دیکھا ڈمپنگ ہیپس بنائے گئے، انکروچمنٹ کا شکار ہے، کہیں پہ اس پہ کنکریٹائزیشن نہیں، میکسیمم 4 یا 5 کلومیٹر کنکریٹائزیشن کیا گیا، اور وہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کی نظر ہے۔ جو باقی جو ڈینس فارسٹ سے جاتے ہیں، جو پہاڑوں کے بیچ میں جاتا ہے، وہاں بریچز ہوئے ہیں، وہاں اس میں انکروچمنٹ ہے، وہاں اس کی کیپیسٹی، کیرینگ کیپیسٹی کم ہو چکی ہے، جو پہلے 300 کیوسکس تھی اب یہ گٹ کے 220 کیوسکس رہی ہے، جبکہ ڈیمانڈ کہیں زیادہ 450 کیوسکس کی بن گئی ہے۔ تو یہ ترال والے بیچارے صحیح پریشان ہیں، ان کو پانی ان کو نہیں ملتا، ہم کو نہیں ملتا، تو اس لیے یہ بات۔ صاحب آپ ٹیل اینڈ پہ ہیں اس کے، تو ہے کیا سچویشن کیا ہے جو ویری صاحب بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے اس کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ جی 75 سے پہلے سید میر قاسم یہاں وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت میرے والد صاحب ایم ایل اے تھے انڈیپینڈنٹ ترال سے، تو ترال میں قحط سالی شروع ہو گئی تھی پہاڑی علاقوں میں، جس کو ہم کنڈی بیلٹ بولتے ہیں۔ یہ کنڈی بیلٹ ہمارا شروع ہوتا ہے ڈیڈی سے، ڈوڈو آدھا ان کے حصے میں پڑتا ہے بیج بیار کے، آدھا ترال میں ہاری پاری گام سے، اور ان کے بیج بیار سے۔ تو جناب جب یہ قحط سالی پڑ گئی، نہ مکی بنی تو نہ دان، تو چونکہ ایم ایل اے تھے تو انہوں نے اسمبلی میں اس وقت سوال اٹھایا، تو اس پہ ایک پروجیکٹ بننا شروع ہو گیا، چونکہ یہ پروجیکٹ بنانا تھا۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں تھی جتنی آج ہے، جیسے آج کل JCPs ہیں اور مٹیریل آ گیا، نئے نئے انوینشنز ہو گئے۔ اس وقت صرف مین پاور تھا، جو ہاتھوں سے آپ کرتے وہی۔ تو ایک پرپوزل اس وقت پہلے اس کو بلیو پرنٹ بنانا ہوتا ہے، جیسے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بناتی۔ ایک پنڈت جی وہاں اس وقت سپرنٹنڈنگ انجینئر تھا، بڑے ایفیشینٹ تھے وہ، کیونکہ میں چھوٹا تھا مجھے تھوڑا بہت یاد ہے۔ پھر جب 75 میں پاور چینج ہو گیا، ٹرانسفر آپ کو پتا ہوگا، ہسٹری آپ کو پتا ہے، اندرا عبداللہ ایکارڈ ہو گیا، تو اس سے مرحوم شیخ محمود عبداللہ وزیر اعلیٰ ہو گئے کشمیر کی، تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو نہیں چھوڑا۔ پھر جب 77 میں الیکشنز ہو گئے تو میرے والد صاحب نے ترال سے الیکشن ہارا، تو ان کے والد صاحب نے بیج بیار سے جیتا، اور محمد سبحان بٹ نے ترال سے الیکشن جیتا، تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا۔ پھر شیخ صاحب یہاں چیف منسٹر تھے، بیگ صاحب ریونیو منسٹر تھے، سنم نربو جی تھے، ڈی ٹھاکر تھے، اور وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے اس کام کا جو بلیو پرنٹ بنا تھا تو کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک خوبصورت ندی بن گئی، ایک کنال اس کو ہم بولتے ہیں، وہاں سے آنا شروع ہوگی ان کے بیچ میں۔ اصلی اس کا آرجن پہلگام کا لیدر کا پانی ہے۔
तो उसका आइडिया था जब ये त्राल पहुंचेगी तो त्राल का एक पहाड़ी सिलसिला जिसको हम शिकार का कहते हैं, बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट। मैं इसको साइड लाइन में एक बात बताऊं, उसमें क्या फायदा था उस कनाल का। एक इस कनाल का फायदा था, जो बहुत सारा हमारा लैंड वहां रेगिस्तान में तब्दील होने जा रहा था, उसे क्या हो गया कि लोगों ने धान भी पैदा करना शुरू की, मक्की भी, और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उन्होंने उसमें दरख्त भी लगाने शुरू की। ये प्रोजेक्ट पहले कुछ दिनों चला, उसके साथ फिर वहां से नीचे से एक लिफ्ट इरिगेशन में उसका पानी भी आ गया। जब पानी की जरूरत ज्यादा बढ़ गई तो आ गई। इसको बढ़ाते गए तो उसको प्रपोजल था ये हम पहाड़ी सिलसिले, बड़े खूबसूरत दीदार के दरख्त है वहाँ, शिकार का बड़ा एक सिलसिला है, उसके दामन के नीचे नीचे एक जैसे एक कनाल जा रही थी। तो ये मुझे ये साइड में एक बात बताऊं, टूरिस्टों के लिए भी एक अच्छा एक सिस्टम बनने जा रहा था वहाँ पे शिकारगाह में। जब ये शिकारगाह के नीचे से फिर हुफू, फिर दाजी, उसका पहाड़ी सिलसिला है, उसका जाना था मुंदुरा तक, एक वास्ट एरिया को ये जो रेगिस्तान में तब्दील होने जा रहा था उसको। मैं एक बात इसमें बताऊं, गवर्नमेंट ने वक्त इस पे पैसे रिलीज किए, चाहे किसकी गवर्नमेंट भी बनी, काम भी हुआ, लेकिन ये स्कीम अंततः नाकाम हो गई। इतना पैसा एक बड़े बुजुर्गों का आइडिया फेल हो गया, जिनका एक तस्वुर, जैसे शेख मरहूम शाह अब्दुल गनी वीरी साहब और मेरे वालिद साहब मोहम्मद सुभान भट्ट साहब, उस वक्त मिर्ज़ा महमूद अफजल बेग, या जैसे बड़े बड़े लीडर या इंजीनियर, उन्होंने उस वक्त दानेदारी से काम किया, लेकिन एक नक्शा बन गया इसका। लेकिन हाल के कुछ सालों में मुझे कल कोई बता रहा था ठेकेदारों के पैसे भी बकाया है, जिसमें ठेकेदार इन्वॉल्व हुए, उनका पैसा भी नहीं दिया गया है। तो मैंने, जैसे वीरी साहब ने, मेरे भाई हैं ये, बशीर साहब, हम पढ़े इकट्ठे खेले हैं, बचपन के साथी हैं, तनवीर सादिक, मैं और सजाद शफी, हम चारों साथी, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, मैं PDP के साथ, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा चालू रही। बिल्कुल। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक वास्ट एरिया को ये रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट था, ये ज़ाया हो रहा है, इतना पैसा इस पर खर्च हुआ है। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एक हाउस कमेटी बनाई जाए ताकि मौके पे जाए, मिनिस्टर साथ है। मैं चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ खुद, क्योंकि दादाजी का प्रोजेक्ट है, वो खुद जाए वहाँ और देखें कि ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हो रहा है। अगर कुछ लाइतुलाल हुआ उसका भी तहकीक करें, लेकिन अगर किसी पैसों के कारण ठेकेदारों के पैसे नहीं मिले तो पैसे दे दीजिए, कि ताकि ये काम जो बना हुआ काम है ये बिगड़ न जाए, एक नक्शा खराब ना हो जाए। इससे बहुत हार्टिकल्चर को भी फायदा होगा, एग्रीकल्चर को भी, और टूरिस्ट को भी। मुझे एक चीज जल्दी बता दीजिए इसमें मुख्तसर अल्फाज में, कि ये जब आप टेल एंड पे हैं तो आपके यहाँ कुछ पानी पहुँचता है? कुछ नहीं पहुँच, कुछ नहीं, ये सिर्फ डंपिंग से जगह जगह इसको ब्रीच हो गए, जगह ग्रेडियंट इसमें वो मलबा जो पड़ा हुआ है ना, डिसिल्टिंग हुई नहीं इसकी, और जो एनक्रोचमेंट हुआ है उसके ऊपर, जो बाथरूम से रिफ्यूज निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, इसमें डंप किया जाता है, पॉलीथीन डंप किए जाते हैं, और गलत जगहों पे अगर कभी पैसा आया भी तो वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका ग्रेडियंट बढ़ चुका है जब इनकी तरफ जाते हैं। जब यहाँ से पानी आ जाता है, अब सीपेज, आप मढ़ामा चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी करें, वहाँ जब अवंतीपोरा कनाल का सीजन होता है, वहाँ नीचे घरों के नीचे से पानी निकलता है, क्योंकि आगे वो जाता नहीं, ग्रेडियंट बढ़ चुका है, वो सीपेज नीचे कर जाता, और हमारे कब्रिस्तान वहाँ अंदर से इरोड हो गए, लोगों के घरों के नीचे से पानी निकलता, आदमी परेशान होता है, यार कैनाल तो कहाँ पे आधा किलोमीटर दूर है, पानी यहाँ कहाँ से निकलता है। जो ये सीजन शुरू होता है, यही हाल हमारी डेडी कनाल का है। डेडी कनाल में जगह जगह ब्रीचेस हुए हैं, किसी ने सही तरीके से इसको संभाला नहीं वहाँ पे। और इसके साथ साथ एक और कनाल जिसका परसों जिक्र हुआ पे, दैट इज नांदी कनाल। एक तरफ से आप कहते हैं कि हमको एग्रीकल्चर में काम करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हरियाली, जो मैंने उस वक्त भी कहा, मैंने इनको कहा पिछले 4 साल से, आप भी जानते हैं होमशाली बुक इलाका जो है, जिसको नांदी कहते हैं, इसी कनाल के नाम पे नांदी, इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यहाँ से फूड ग्रेन हर तरफ सप्लाई होता है, इतना प्रोडक्शन होता है, इतना जरखेज इलाका है जनाब, आप हैरान होंगे, पिछले 5 सालों से ड्रॉट की सिचुएशन वहाँ पे है, और लोगों ने पैडी की काश्त खत्म कर दी, अब मेज उगाना शुरू कर दी। और यही नहीं, अब आरडीडी वालों को, ब्लॉक वालों से रोड बनवा रहे हैं और ज़मीनें बेच रहे हैं। पहले ही मार्जिनल फार्मर्स थे। मैंने इस चीज़ का अहाता किया और इस कनाल पे भी मैंने वॉक लिया। ये 35 किलोमीटर है, लेकिन मेरे इलाके में कोई 19 किलोमीटर आता है। दबजन के हेड्स तक में चला गया, उसके बाद गाड़ी में चला गया। ये जो अनएबेटेड
रिवर बेड माइनिंग हुई यहाँ पे, JCBs लगाए गए, जहाँ इसके हेड वर्क्स है वो इतने डीप चले गए कि 3-3, 4-4 मीटर वहाँ पे डेप्थ चली गई और पानी यहाँ आता ही नहीं। और उसके साथ साथ जब इसमें पानी नहीं आया, लोगों ने इस पर मकान बनाना शुरू किए, लोगों ने एनक्रोचमेंट कर दिया। जब पानी नहीं, जब लोगों को फ़ायदा नहीं होता, और इस कनाल की ऐसी हालत है कि आज हमें पानी के एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। लास्ट ईयर ऑनरेबल गवर्नर साहब को जबलीपुर फ्रूट मंडी में किसी चीज़ का इब्तिदा करने आना था, तो इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट, इसी बात पर मुझे कल भी गुस्सा आया कि ये जवाब मैं कह रहा हूँ यार ड्रॉट है वहाँ पर, रीज़न क्या है? ये कहते नहीं ये कनाल है, वो पता नहीं इधर की उधर की बात करते हैं। जब गवर्नर साहब वहाँ पे आए, 15 दिन पहले इन्होंने इतना पानी उस कनाल में डाल दिया कि लोग एनकरेज हो गए कि शायद ये ठीक हो गई, तो उन्होंने पैडी की काश्त कर दी। नहीं बने थे लेकिन वहाँ पे काम कर रहे थे, तो मैंने सूरत हाल देखा। बाद में फिर बेचारे लोगों ने उसमें मक्की का बीज बोया और दान जो पैडी थी वो खराब हो गई। तो जो नंदी कनाल है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है लासीपोरा कुलगाम में, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में चलती है। मैंने वहाँ के DC साहब से टेकअप किया। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इलीगल माइनिंग, रिवर बेड माइनिंग। ये जो JCBs लगाते हैं जहाँ पे इनके हेड वर्क्स होते हैं, वो ब्लॉक 27, 28 मैंने खुद आइडेंटिफाई किया। फिर मैंने DC साहब ने भी शायद उसमें अब चैनल बनवाने के अहकामात वहाँ पे सादिर किए। लेकिन हालत इतनी ख़राब है इस कैनाल की कि जगह जगह पे अगर हम इनिशिएट ना करेंगे, ये कनाल भी डडी कनाल से भी बदतर हालत है यहाँ पे। और यहाँ के लोग जो ज़्यादातर 98% लोग इसी खेती बाड़ी पे इनका गुजारा होता है, आज तरसते हैं। आज इतनी गुर्बत है वहाँ, इतनी मुफलिसी है वहाँ पे। आपको भी मेरे साथ चलिए, बिजबियाड़ा से 2 किलोमीटर के बाद ये जो नया रास्ता बना है, जब आप श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ आएंगे, ये जो नया रास्ता जहाँ से शुरू होता है एयर स्ट्रिप जहाँ, वहाँ से 2 किलोमीटर आप आगे चले, आप देखेंगे लोगों की गुर्बत का क्या हाल है, क्योंकि उनको सस्टेनेंस नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के कोई पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सब डिपेंडेंट इसी खेती बाड़ी पे था, और पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ हालत इतनी खराब, और कोई सुनने वाला नहीं। कोई प्रोटेस्ट करे उसको जेलों में भर दिया जाता है। तो इसलिए मैंने कल भी बहुत ज़बरदस्ती से ये मौजू उठाया वहाँ पे। अगर हम अभी इस इनिशिएट ना करेंगे, प्रायोरिटाइज ना करेंगे इस चीज़ को, तो हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमें फ्यूचर हमारा है, जो हमारी इकोनॉमी को रेस्क्यू कर सकता है, वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी और हालत बदतर हो जाएगी। देखिए, इरिगेशन प्रॉब्लम रहेगी इस साल, क्योंकि बारिशें कम हुई हैं। 2-3 साल से बारिशें कम हो रही हैं, तो इरिगेशन प्रॉब्लम। मेरी गवर्नमेंट से यही सजेशन, बजट सेशन आ रहा है, जब ग्रांट्स आएंगी तो ये जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स है उस पर खूब पैसा, और मॉनिटरिंग के तहत। ये नहीं ऐसे पैसे फेंकें तो फिर मैदान में ये देखे ना। इसमें रेस्पॉन्सिबल बनाएं, एक फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी करें ऑफिसर्स को, भाई ये आपने ऑपरेशनल बनाना है। पैसे, मगर पैसे रिलीज करना पड़ेगा इनके लिए। अगर कहीं लूप होल्स हैं तो जब इतने 3 अरब रुपया आपने खर्च किए, 10-12 करोड़ का मसला है, तो उस पर पैसा रिलीज कीजिए, और इसको मैं यही चाहता हूँ इसको ऑपरेशनल बना लें। ये जो 2 कनाल हैं ये दोनों मैन मेड कनाल, ग्रेविटी कनाल से, हाँ मैन मेड ग्रेविटी कनाल से। लेकिन इनकी तबाही में क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं। क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा, वो तो इन्हीं को नहीं करेगा, वो तो ओवरऑल हर एक चीज़, वो पैडी पे भी आएगा, फॉरेस्ट पे भी आएगा। और बदकिस्मती से हमारे कश्मीर में जो कि हाइपर सेंसिटिव है एज फार एज आवर इकोलॉजी इज कंसर्न क्लाइमेटिकली, कहीं पे भी अगर 1% इफेक्ट होगा, हमारे यहाँ 10% इफेक्ट होगा, विल बी 10 टाइम्स मोर इफेक्टेड। मैं अभी अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में गया था, वाटर कंजर्वेशन के हमारे वहाँ सेमिनार थे क्लाइमेट चेंज के ही तहत। मैंने 3 दिन वहाँ पे भी सेमिनार पे बोला, मैंने वहाँ पेपर प्रेजेंट किया कंजर्वेशन ऑफ वाटर। लेकिन हमारे यहाँ इनसेंसिटिव है लोग क्लाइमेट चेंज को लेके। आपके ग्लेशियर सुकड़ रहे हैं, रोज आप देखिए, रोज रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आपके वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा काम। देखिए आपके जो करेवाज है, ये जो मिट्टी के टेले हैं, दे आर मॉइस्चर बैंक्स। जब बारिश गिरती है, जब बर्फ़ गिरता है, तो उनमें मॉइस्चर रिटेन रहता है। जब खुश्क साली होती, वो आहिस्ता आहिस्ता पर्कुलेट हो जाता है और ग्राउंड में चला जाता, आपकी हरियाली मेंटेन रहती है। और जो मार्शी लैंड्स, वेटलैंड्स है, वहाँ से जो पानी फ्लो हो जाता है वो रिटेन करता है, ऊपर वाला निकल जाता है। दे आर फिल्टर्स, दे बिकम द किडनीज ऑफ द वाटर विच प्रोवाइड्स प्योर वाटर। अब देखिए हमारे यहाँ क्या, इन्होंने जितने भी करेवाज है उनको ख़त्म किया, उनको अनएबेटेड क्ले माइनिंग हो गई, और वो कहाँ ले गए, वो इन्हीं मार्शी लैंड
پلانٹس میں ان کو فلنگ کر دی اور وہاں سے روڈ انفراسٹرکچر نکالا, روڈ پروجیکٹس بنا گئے. ادھر سے بھی ہم کو تباہی, ادھر سے بھی ہم کو تباہی. Unscientific application for the development of infrastructure in Kashmir is going to convert our valley into desert, worse desert than Rajasthan. تو آپ دونوں محترم لا میکرز کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دو اہم کنالز کے حوالے سے بات کی جو بہت سیریس معاملہ ہے ہر پارٹس آف کشمیر. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.